નમસ્કાર. નમસ્કાર. ઓકે, જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે, તો હવે આપણે ઘણા ટાઈમથી અહીંયા બેસ્યા છે, તો હવે સૌથી પહેલા અહીંયા આગળ કંઈક રૂલ્સની વાત કરીએ આપણે. તો આપણે જે કોઈ પણ વસ્તુ અત્યારે લઈને આવ્યા છે એ વસ્તુને આપણે આપણી ચેર પર મૂકી દઈએ અને આપણે બધા એક સાથે ઊભા થઈ જઈએ આગળ. ઓકે, બધા જ એક સાથે ઊભા થઈને આપણી હાથમાં જે કંઈ પણ વસ્તુઓ છે તેને આપણે મૂકી દઈએ સાઈડમાં. ઓકે, ખુરશી પર મૂકી દો. રેડી? હવે આપણે છે ને, હું પહેલા કરીશ, તમારે કોઈએ કશું કરવાનું નથી. પહેલા હું કરીશ, પછી તમારે મારી સાથે એક્ટ કરવાનું છે. પહેલા મને જોવાનું છે. આપણે 5 વખત, કેટલી વખત? 5 વખત જમ્પ કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? જમ્પ કરવાનું છે. રેડી? જો પહેલા હું કરીશ, પછી તમારે કરવાનું છે. હમણાં નથી કરવાનું. 1 2 3 4 and 5. રેડી? મ્યુઝિક વાગશે એટલે વાંધો નહીં આવે. આપણે મ્યુઝિકની સાથે સાથે 5 વખત જમ્પ કરીશું. રેડી છે એવરીવન? યસ ઓર નો? ગ્રેટ. તો આપણે અહીંયા આગળ મ્યુઝિક ચાલુ થઈ ગયું છે. ચલો સ્ટાર્ટ. 1 2 3 4 5. ગ્રેટ. કંઈક એનર્જેટિક નહીં લાગ્યું. ફરીથી એક વખત હું પાછું કરાવડાવીશ. ચલો 1 2 3 સ્ટાર્ટ. 1 2 3 4 5. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. બધા બેસી ગયા. હવે અહીંયા થોડુંક એક્ટિવનેસ આવ્યું છે. થોડુંક હવે બધા બેઠા હતા, સૂતા હતા. સર મને કહેતા હતા કે સર કયા કેમ સૂતા છે? મેં કીધું વાંધો નહીં, આપણે જગાડશું. ઓકે, તો આપણે અહીંયા ભેગા થયા છે કેરિયર ગાઈડન્સ માટે કે આપણે ધોરણ 10 અને 12 પછી શું કરવું જોઈએ. રેડી? તો હું સ્લાઇડ ચેન્જ કરાવીશ. અહીંયા તમને કેટલા મંકી દેખાય છે? 1 2 3 4 અને 5. બધાને 5 મંકી દેખાય છે? હા યા ના? ઓકે, એમાંથી 2 મંકીને વિચાર આવ્યો કે આપણે નીચે જમ્પ મારીએ. હવે કેટલા મંકી રહેશે? કેટલા? 3 કે 5? અમુક લોકો 3 બોલે છે, અમુક લોકો 5 બોલે છે. મેં શું કહ્યું કે અહીંયા આગળ 2 મંકી જે બંને મિત્રો હતા એનો વિચાર આવ્યો કે આપણે જમ્પ માર્યો. એને જમ્પ માર્યો નહીં ને? તો કેટલા રહ્યા? એવી રીતે ઘણા બધા મેસેજ, ઘણા બધા વિડીયો અને બાળકો એટલે કે સ્ટુડન્ટ્સે મમ્મી પપ્પાને અને બધા ફ્રેન્ડ્સને પકડીને અહીંયા તો લઈ આવ્યા. અહીંયા તો આપણે પહોંચી ગયા. પણ અત્યારે હું તમને જે પણ સમજાવીશ, જે પણ કહીશ, જો એ આપણે સમજીશું નહીં, એના પર એક્ટ નહીં કરીશું અને આપણે કૂદીશું નહીં, તો અહીંયા આવવાનો કોઈ પણ મતલબ રહેશે નહીં. એટલે આપણે ફક્ત આવીને અહીંયા બેસી નથી જવાનું. આપણે આજે જે પણ શીખીશું, જે પણ અહીંયાથી સમજીશું, એના ઉપર શું કરવાનું છે? એક્ટ કરવાનું છે. ઇઝ ઇટ ઓકે? બધાને ગુજરાતી આવડે છે? આમાંથી કેટલા વિદ્યાર્થી છે જેને ગુજરાતી નથી આવડતું? તો હું હિન્દી પણ કન્ટિન્યુ કરી શકું છું. બધાને ગુજરાતી આવડે છે? ચલો, જેને ગુજરાતી નથી આવડતું હાથ ઉપર કરે. ओके, तो वांधो नहीं, मैं यहाँ पे बीच बीच में आपको लिटिल बिट हिंदी भी समझाते जाऊंगा और हिंदी एंड गुजराती दोनों ही हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. तो અહીંયા આગળ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ઉપર જઈએ. અહીંયા આગળ તમને 2 પ્રાણી દેખાય છે. કેટલા પ્રાણીઓ છે? 2. એક કોણ છે? સિંહ છે અને બીજો કોણ છે? હરણ છે. ડિયર એન્ડ લાયન. હવે આમાં જે ડિયર છે, જે હરણ છે, એની ભાગવાની સ્પીડ કેટલી છે? 80 to 90. એ 80 to 90 કિલોમીટરની સ્પીડમાં શું કરી શકે છે? ભાગી શકે છે. જ્યારે લાયન છે, જે સિંહ છે, એની ભાગવાની સ્પીડ કેટલી છે? 50 થી 60 ની છે. કેટલી છે? 50 થી 60 ની. જો અહીંયા આગળ હરણ એટલે કે ડિયર 80 થી 90 ની સ્પીડમાં ભાગ્યા જ કરે અને લાયન 50 થી 60 ની સ્પીડમાં ભાગ્યા જ કરે. તો એવું તો ના બનવું જોઈએ ને કે લાયન
ડિયરનો એટલે કે સિંહ જે છે એ હરણનો શિકાર કરી શકે? અગર સિંહ 50 ની સ્પીડમાં 60 ની સ્પીડમાં ભાગે છે અને હરણ 80 થી 90 ની સ્પીડમાં ભાગે છે, તો શું સિંહ હરણનો શિકાર કરી શકે કે ના કરી શકે? ના કરી શકે. પણ હકીકતમાં એવું થતું નથી. સિંહ હરણનો શિકાર કરે છે. તો એવું તે શું થતું હશે, એવું તો શું બનતું હશે કે એક દિવસ સિંહ હરણનો શિકાર કરી લે છે. બંનેની સ્પીડમાં બહુ મોટો ફરક છે, છતાં પણ સિંહ હરણનો શિકાર કરી શકે છે. તો એવું તે શું હશે? તો હું તમને અહીંયા સમજાવું, અને આમ જેટલી પણ વસ્તુ સમજાવું છું એ આપણા કેરિયર માટે, આપણા ફ્યુચર માટે, એના ડિસિઝન્સ લેવા માટે બહુ જરૂરી છે. એને અગર ધ્યાનથી સમજીશું તો ડેફિનેટલી આપણે ચોક્કસ પાથ અને સાચા રસ્તે પહોંચી શકીશું. સિંહ જે છે અને હરણ છે, અને ભગવાને આપણને દરેકને બે પ્રકારની શક્તિ આપી છે. કેટલી शक्ति? दो प्रकार। दो टाइप की शक्तियां हमें कुदरत से मिली है। पहली शक्ति जो भार की शक्ति है, जैसे मैंने अभी आपको खड़े किया, जब हमें तुम्हें उभा थया અને કૂદકો માર્યો, તો એ કોઈ શક્તિ હતી? આપણી ભારની શક્તિ હતી, જેનાથી આપણે શું કર્યા? જમ્પ કર્યું. પણ એ જમ્પ આપણે ક્યારે કરી શક્યા? જ્યારે મારી અંદરની શક્તિ રેડી હતી કરવા માટે કે હા હું કરી શકું છું. અમુક લોકોએ જમ્પ ના કર્યું, અમુક લોકો ના કૂદ્યા. કેમ? કારણ કે અંદરની શક્તિ શું હતી? કહેતી હતી કે હું નહીં કરી શકું, મારાથી આ નહીં થશે. એટલા માટે એ લોકો ભારની શક્તિને શું નહીં કરી શક્યા? ભાર નહીં લાવી શક્યા. એવી જ રીતે હરણ જે છે એની ભારની શક્તિ તો બહુ જબરજસ્ત છે, પણ અંદરથી એને શું થતું હોય છે? આજ તો હું ગયો, આજ તો મારો શિકાર થશે જ. અંદરથી હારી ગયો, અને જ્યારે અંદરથી હારી ગયો ને, તો બહારની શક્તિ કેટલી પણ સોલિડ હોય એ હારશે. પણ જ્યારે આ સિંહની વાત કરું ને, લાયનની વાત, એની બહારની શક્તિ બહુ ઓછી હતી, પણ અંદરની શક્તિ કેવી હતી? સોલિડ હતી. એના મોઢામાં રસ આવતો હતો કે આજે તો મારું ખાવાનું કામ થઈ ગયું, મારો નાસ્તો મળી ગયો. અને એને અંદરની શક્તિને એટલી જબરજસ્ત કરી અને એટલી મજબૂત કરી કે એને કોનો શિકાર કર્યો? હરણનો શિકાર. એક્ઝેક્ટલી સેમ વે આપણે જ્યારે પણ કોઈ કેરિયર વિશે યા કોઈ પણ ફિલ્ડ વિશે ડિસાઈડ કરતા હોઈએ કે મારે કઈ ફિલ્ડમાં જવું છે, મારે કઈ ફિલ્ડમાં જવું જોઈએ, તો એ બહારની શક્તિ નહીં, કઈ શક્તિ હોવી જોઈએ? અંદરની. અગર અંદરની શક્તિ પાવરફુલ હશે, અંદરની શક્તિ જબરજસ્ત હશે, તો શું થશે? આપણે વિન થશું અને એ ફિલ્ડમાં આપણે ડેફિનેટલી આગળ આવશું. સપોઝ એક્ઝામ્પલ, કોઈ સ્ટુડન્ટ છે જેની શક્તિ એટલી છે કે 90% લાવી શકે છે, 90% નો સ્ટુડન્ટ છે, બરાબર છે, પણ ભારની શક્તિ છે કે 90% લાવી શકે છે, પણ અંદર શું થાય છે? એને મોબાઈલની 6 ઇંચની સ્ક્રીન મળી જાય અને મુકેશભાઈનો આશીર્વાદ એટલે 1.5 GB ઇન્ટરનેટ મળી જાય, અને પછી ગેમ અને ફ્રી ફાયર ચાલુ થઈ જાય, અને તારક મહેતા અને અનુષ્કા ચાલુ થઈ જાય, તો પછી શું થઈ જાય? પતી જાય. એટલે કે બહારની શક્તિ છે 90% લાવવાની, પણ અંદરની શક્તિ નથી. એટલે એ શું નથી કરી શકતો? સારા માર્ક્સ નથી લાવી શકતો. તો આપણે હરણની જેમ બહારની શક્તિ નથી વિકસાવવાની, આપણે કઈ શક્તિ विकसावानी है? अंदर में। अगर हम अंदर से डेवलप होंगे, अंदर से मजबूत होंगे, तो हम आसानी से क्या कर पाएंगे? कोई भी चीज को हम लोग हासिल कर पाएंगे, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। ओके, हम लोग दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे एक लड़की है जिसकी भार की शक्ति कम है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिसके पैर नहीं है, हैंडीकैप है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, चल नहीं सकते और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है उनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि वो हमेशा जीते हैं। आज आप देख लो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिनके पास बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है और वो हैंडीकैप है और देख नहीं पा रहे, लेकिन आज भी वो टॉप पे है। क्यों वो टॉप पे है? क्योंकि उसकी भार की शक्ति बहुत कम है, लेकिन अंदर की शक्ति क्या है? सॉलिड है, जबरदस्त है। अगर हम अंदर की शक्ति को
डेवलप कर पाते हैं तो फिर फील्ड की कोई टेंशन ही नहीं है। फिर हम आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या साइंस में हो, चाहे बायो में, चाहे मैथ्स में हो, हम हमेशा टॉप रहेंगे। लेकिन कब? जब अंदर की जो शक्ति है ना वो जब पावरफुल हो जाएगी तब। ओके, इसको देखते हैं हम लोग। एक छोटा सा क्लिप है यहाँ पे। दिन रात पसीने से हम लोग अगले स्टेप पे जाते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर। आपको एक एक करके इनकी फोटो को पहचानना है कि ये कौन है। आपको मुझे नाम बताना है। ओके, रेडी है सब लोग? यस और नो? एक रूल बताना मैं भूल गया, जब भी आपको यस बोलना हो तो आपको क्या बोलना है? जय हो। क्या बोलना है? ओके, तो रेडी एवरीवन? जय हो। ओके, ग्रेट। तो इनका नाम आप जानते ही होंगे। क्या नाम है इनका? वेरी गुड। इनका नाम? ओके, वेरी गुड। इनका नाम भी जानते ही होंगे। चहीते इंडियन, सुंदर पिंचाई है। ओके, फिर अगला नाम इनको सब लोग जानते होंगे, राइट? चलिए आगे दूसरा, सब लोग जानते हैं। यस और नो? यस, जय हो। ओके, और भूल गया मैं तो, हमारे फेवरेट, क्या नाम है इनका? ओके, अभी आप लोगों ने इनका नाम लिया, यस और नो? लेकिन जब इनका नाम लिया तब सिर्फ आपके दिमाग में उनका नाम ही आया कि उनका काम भी आया? क्या आपको धोनी की इमेज देखते वक्त थोड़ी सेकंड के लिए भी ऐसा लगा कि धोनी का इमेज इस्त्री करते हुए आया कि वो इस्त्री कर रहा है? क्या आया? वो विकी कर रहा है या क्रिकेटर है? ओके, जैसे हमने सरदार पटेल जी के बारे फोटोज ली, देखी, नाम लिया, तब हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद आया। यस और नो? यस और नो? तो हमने उनके नामों को किसके हिसाब से पहचाना? काम के हिसाब से। इंसान जो है वो नाम से फेमस नहीं होता है, वो हमेशा अपने काम से फेमस होता है। अगर मैं वकील के पास जाके एफिडेविट बना दूं और कल से मेरा नाम रख दूं कि मेरा नाम भी महेंद्र सिंह धोनी है, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? यानी मेरे नाम से कुछ भी फर्क पड़ेगा? नो। यानी कि इंसान अपने नाम से नहीं, उसके काम से पहचाना जाता है। तो अगर हमें किसी भी इंसान को अपने नाम से और काम से पहचानना है तो काम कैसा होना चाहिए? काम वो होना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। આપણે કામ એવું કરવાનું છે જેમાં આપણે કોઈ દિવસ શું ના જોવું પડે, ઘડિયાળ ના જોવી પડે, અને એ કામને હું 18 કલાક સુધી કરી શકતો હોઉં, અને એવું હું કામ નક્કી કરું, એવી ફિલ્ડ નક્કી કરું કે એ ફિલ્ડમાં મારે જે કામ કરવાનું છે એ કામથી હું ઓળખાઉં, મારા નામથી નહીં, મારા કામથી ઓળખ બનાવી હોય એવી ફિલ્ડ આપણે નક્કી કરવી પડશે। એટલે આપણે કોમર્સ, આર્ટ્સ કે સાયન્સ એ નક્કી નથી કરવાનું, આપણે આપણો ઇન્ટરેસ્ટ નક્કી કરવાનો છે। મારો ફ્રેન્ડ્સ શું કરે છે, મારા રિલેટિવ માસીનો છોકરો કઈ ફિલ્ડમાં જાય છે, મારા સ્કૂલ ટીચરે શું કીધું, એક ડિસાઈડ કરીને નક્કી કરશો ને તો પછી આપણું નામ તો રહેશે પણ આપણે કામથી નહીં ઓળખાઈએ। यानी इंसान हमेशा अपने नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर આપણે જઈએ, આગળ વધીએ। હવે કલાકની વાત કરીએ। હવે આમાંથી દરેકને ખબર છે કે હવે ધોરણ 10 પછી કે 12 પછી આપણે કોઈક ને કોઈક એક ફિલ્ડ લેવાની છે। પછી ફિલ્ડની વાત કરું તો એ બીકોમ હોય, બીબી હોય, બીસીએ હોય, એમસીએ હોય, એમકોમ હોય કે પછી યુપીએસસી હોય કે મારે સપોઝ એક્ઝામ્પલ એન્જિનિયરિંગ લેવું હોય તો ફાર્માસ્યુટિકલ હોય કે પછી એન્જિનિયરિંગ્સ ની અંદર જઈને મારે સિવિલ લેવું હોય, મેકેનિકલ લેવું હોય या પછી ઇલેક્ટ્રિક લેવું હોય या પછી મારે આઉટ ઓફ જવું હોય તો આઈએલટીએસ કરવું પડે, પીટીઈ કરવું પડે, ગવર્નમેન્ટ માં જવું હોય તો યુપીએસસી જ દેવી પડે અથવા તો મારે અહીંયા આગળ ગુજરાત ગવર્નમેન્ટ ની યુપીએસસી ની એક્ઝામ દેવી પડે या પછી હું આઈએએસ બનું या આઈપીએસ બનું या કોઈ પણ ફિલ્ડ માં જાઉં તો એની અંદર મારે કેટલા કલાક કામ કરવું પડશે, કેટલા કલાક કામ કરવું પડશે? તો તમને દરેકને ખબર છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કેટલા કલાક કામ કરે? તમે જોબ કરો કે બિઝનેસ કરો, ઓછામાં ઓછું કેટલા કલાક કામ કરવું પડે? 8 કલાક? યસ ઓર નો? જય હો? ઓકે,
કેટલા કલાક કામ કરવું પડે? 8 કલાક. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો, વર્ષમાં કેટલા દિવસ હોય? વર્ષમાં કેટલા દિવસ હોય? 365 દિવસ. હવે 65 દિવસની રજા સાઈડમાં કાઢી નાખો. દિવાળીની રજા, વેકેશનની રજા, રવિવારની રજા, એ બધું સાઈડમાં કાઢી નાખો. તો કેટલા દિવસ રહે આપણી પાસે? 300 दिवस. 65 दिवस साइड में काटी नाखो, 65 डेज को साइड में रख दो, तो आपको कितने दिन काम करना है पूरे साल में? 300 दिन काम करना है. 300 डेज. अब 300 दिन काम करना है और रोज 8 घंटे काम करना है, तो एक साल में मैं कितने घंटे काम करूंगा? कितने घंटे काम करूंगा? 8 3 जा 24, यानी कि 2400 घंटे मुझे काम करना है. कितने घंटे काम करना है? 2400 घंटे काम करना है. अब कोई भी स्टूडेंट किसी भी फील्ड को चूज करेगा, कोई भी फील्ड को चॉइस करेगा, तो उसको लगभग कितने साल काम करना है? 40 साल. कितने साल काम करना है? 40 साल तक वही काम करना है, चेंज नहीं कर सकते. राइट? ये फील्ड थोड़ी ना है कि डायमंड छोड़ के टेक्सटाइल में आ गए, टेक्सटाइल छोड़ के डायमंड में आ गए. राइट? हमें यहाँ पे किसी भी एक फील्ड में कितने साल काम करना पड़ेगा? 40 इयर्स, यानी कि 40 साल काम करना पड़ेगा. अगर 40 साल को मैं 24 घंटे के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, गुणाकार कर दूं, तो कितना होगा? कितना होगा? 40 इंटू 25 400 कितना होगा? 2400 इंटू कितना करना है हमें? 40. कितना होगा? 96,000 होगा. कितना होगा? 96,000. यानी कि 96,000 आवर्स में अगर आप गिन लो कि कभी संडे एक्स्ट्रा टाइम कर दिया, कभी ओवर टाइम कर दिया, तो लगभग आपको अपनी लाइफ में 1 लाख आवर्स यानी 1 लाख घंटे आपको काम करना है. કેટલા? 1 લાખ કલાક કામ કરવાનું છે. કેટલું કામ કરવાનું છે? 1 લાખ. અગર હું એક પ્રોફેશન ચોઈસ કરું છું કે મારે તબલા વગાડવાનું પ્રોફેશન લેવું છે, તો મારે કેટલા કલાક તબલા વગાડવા પડશે લાઈફમાં? 1 લાખ કલાક તબલા જ વગાડવાના છે. તો શું હું 1 લાખ કલાક તબલા વગાડવા માટે રેડી છું? અગર મારી જેમ અહીંયા બોલવાનું કામ મળે, तो बोलवा माटे मारे कितना कलाक काम करवानुं छे? बोलवानुं काम मारे मारी पूरी लाइफ में कितना कलाक करवानुं छे? 1 लाख कलाक मारे अहींया बोलता ज रहेवानुं छे, बोलता ज रहेवानुं छे, बोलता ज रहेवानुं छे. अगर कोई डॉक्टर बनी जाए तो 1 लाख कलाक एने शुं करवानुं छे? पेशेंट्स नो इलाज ज करवानो छे, इलाज ज करवानो छे, इलाज ज करवानो छे. तो હું જે પણ કામ નક્કી કરું છું, જે પણ ફીલ્ડ મને નક્કી કરવી છે, શું એ કામ હું 1 લાખ કલાક કરવા માટે रेडी छू? अगर नहीं, स्टूडेंट के मारे बीसीए करवू छे, बीसीए करवा माटे कॉम्प्यूटर्स नो लैपटॉप्स लई ले, कोडिंग ना क्लास लगावी दे अने 8 कलाक कोडिंग करे पछी के आई नॉट लाइक दिस, आई नॉट लाइक दिस, आई नॉट लाइक दिस मीन्स व्हाट? 4 वर्ष बीसीए कर्या पछी 3 वर्ष बीसीए कर्યું, પછી मास्टर तरफ गयो, 4 वर्ष बीसीए ની અંદર રહ્યો, बराबर छे. पप्पाना 8 થી 10 लाख रुपया त्या नाख्या અને પછી 8 કલાકની નોકરી કરવાની આવી, એક કોમ્પ્યુટર પર બેસીને કોડિંગ કરવાની, તો કહે છે આઈ નોટ લાઈક ધીસ. તો વોટ? તો આપણે કોઈ પણ ફિલ્ડને નક્કી કરતા પહેલા નક્કી કરવું પડશે કે જે ફિલ્ડમાં હું મારી લાઈફના 3-4 વર્ષ નાખું છું, જે ફિલ્ડમાં મારા પપ્પાના મમ્મીના પૈસા આમાં નાખું છું, એમાં શું હું 1 લાખ કલાક કામ કરવા માટે રેડી છું? અગર નથી તો પછી આપણે લાઈન આજથી અત્યારથી શું કરી દેવી પડશે? ચેન્જ કરી દેવી પડશે. અને જો હું ચેન્જ નથી કરતો અને હું એમાં રહું છું, તો 4 વર્ષ પછી મારે શું કરવું પડશે? મારી ફિલ્ડને ચેન્જ કરવી પડશે. અને જો ચેન્જ કરવાની વારી આવી તો ઉંમર પણ મોટી થઈ ગઈ હશે અને પપ્પાના ગજવાના પૈસા પણ પૂરા થઈ ગયા હશે. પછી લાઈફમાં ટર્ન મારી શકવાની કોઈ પોસિબિલિટીઝ નહીં હશે. તો આપણે કોઈ પણ કામ નક્કી કરીશું તો એ કામ નક્કી કરતા પહેલા એક સવાલ પૂછવો પડશે કે જે ફિલ્ડ હું લેવા માંગુ છું, જે ફિલ્ડમાં હું જવા માંગુ છું, એ ફિલ્ડમાં હું 1 લાખ કલાક કામ કરવાની શક્તિ ધરાવું છું, તો એ ફિલ્ડ લેવાય, નહીં તો લેવાય નહીં. યસ ઓર નો? જય હો. ઓકે, नेक्स्ट स्लाइड्स पर जाइए. આપણે કેટલા કલાક? હવે જનરલી પેરેન્ટ્સ નોર્મલી હું છેલ્લા 22 વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છું, લગભગ છેલ્લા 18 વર્ષથી અહીંયા અમરોલીમાં આપણે આ બ્રાન્ચ ઉપર કામ કરું છું.
નોર્મલી જ્યારે પેરેન્ટ્સ મળે ને મને એક જ સવાલ પૂછે, સર આની માટે સારું શું છે? ઓકે, હું તમને પૂછું શું સારું છે? ઓકે, સારું શું છે? કોમર્સ લો, આર્ટ્સ લો કે સાયન્સ લો, સારું શું છે? તો મારો એક જ સવાલ છે કે પંખાની કેટલી પાંખો હોય? કેટલી પાંખો હોય? આપણા ઘરે પંખા છે, કેટલી પાંખો છે એની? 3. એ 3 માંથી સારી પાંખ કઈ છે? એ 3 માંથી સારી પાંખ કઈ છે? નક્કી કરી શકાય? 3 પાંખ સરખી છે? યસ ઓર નો? 3 પાંખ સરખી છે? હવે તમને કોઈ કહે કે આ 3 માંથી કોઈ પણ એક સારી પાંખ મને કયો કે આ સારી પાંખ છે, તો તમે ડિસાઈડ કરી શકો? નો. કારણ કે 3 પાંખનું મહત્વ એટલું જ છે. અગર હું પંખાની વાત કરું તો પંખો કોણ બનાવે? સાયન્ટિસ્ટ. જે સાયન્સનો વિદ્યાર્થી છે એ શું બનાવતા શીખે? પંખો બનાવતા શીખે. પંખો બનાવવાનું કામ કોનું છે? જે સ્ટુડન્ટ સાયન્સનો છે, જેણે વિજ્ઞાન લીધું છે, જેણે સાયન્સ ફિલ્ડમાં ગયો છે. હવે કોમર્સ વાળો શું કરશે? પંખો બની ગયા પછી એને કેટલા રૂપિયામાં વેચવો, કેટલો પ્રોફિટ લેવો, કેટલો નફો લેવો અને કેટલા પૈસા કમાવા, અને એને કહેશે કે આ પંખો અત્યારે લેશે, આટલું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે, આમ મળશે, તેમ મળશે, અને એને વેચીને નફો કમાવશે. એની ફિલ્ડ કોની? कॉमर्स वाला ने. कॉमर्स શું કરશે? એ પંખાને વેચશે. पंखे को बेचने का काम कौन करेगा? कॉमर्स का स्टूडेंट. पंखे को बनाने का काम कौन करेगा? साइंस का स्टूडेंट. तो आर्ट्स वाला स्टूडेंट क्या करेगा? हवा खाएगा? हवा खाएगा? नो. आर्ट्स वाला स्टूडेंट क्या करेगा? वो साइकोलॉजी के ऊपर काम करेगा, रिसर्च करेगा, सर्वे करेगा कि आज के टाइम पे 2026 में यहाँ पे इस पृथ्वी पे लोग इतने आलसी हो गए हैं कि बेड पे बैठे बैठे रेगुलेटर घुमाने के लिए भी उनको कंटाला आता है. अगर इसमें से एक जन को मैं गायब कर दूं तो क्या हमारे घर तक पंखा पहुंच सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल. आर्ट्स वाले का भी उतनी ही वैल्यू है जितनी साइंस की है, जितनी कॉमर्स की है. तो यहाँ पे सवाल गलत है कि कौन सी फील्ड अच्छी है, कई फील्ड सारी છે ને, એ સવાલ ખોટો છે. સવાલ કંઈક આ હોવો જોઈએ, સવાલ કંઈક આ હોવો જોઈએ કે બધી ફીલ્ડ સારી છે પણ મારી માટે શું સારું છે. હું તમને એવા 3 પાણીપુરી વાળા બતાવું સુરતની અંદર જેનો રોજનો 30,000 નું કાઉન્ટર છે. કેટલા હજારનું કાઉન્ટર? 30,000 નું કાઉન્ટર. એટલે મહિનામાં 9 લાખ રૂપિયા કમાય છે એક પાણીપુરી વાળો સુરતની અંદર. હું તમને સુરતની અંદર એવા સલૂન બતાવું, એવા 3 સલૂન બતાવું જે સલૂન વાળો મહિનાના 10 થી 12 લાખ રૂપિયા કમાય છે. તો હું મારી ફિલ્ડ બદલી દઉં? કાલથી થેલો લઈને હું પણ પાણીપુરી વેચવા જાઉં? શું હું પણ સલૂન ખોલી દઉં? સવાલ એ નથી કે કઈ ફિલ્ડ સારી છે. પાણીપુરીનો બિઝનેસ પણ સારો છે, સલૂનનો બિઝનેસ પણ સારો છે, કોમર્સ, આર્ટ્સ, સાયન્સ, ડિપ્લોમા બધું સારું છે. મારી માટે શું સારું છે, મારે શું કરવું જોઈએ, એ ડિપેન્ડ કરે છે. સવાલ ખોટો છે કે કઈ ફિલ્ડ સારી છે. ફિલ્ડ બધી જ સારી છે. મારી માટે શું સારું છે અને હું કઈ ફિલ્ડ લઈશ જેની અંદર 1 લાખ કલાક અગર કામ કરવું પડે ને તો મારે ઘડિયાળ જોવી નહીં પડે. 1 લાખ કલાક કામ કરવું હશે ને તો હસતા હસતા કરી શકું ને, એ મારી ફિલ્ડ હોવી જોઈએ. અને તો જ આપણા નામની સાથે કામ જોડાશે, અને આપણું કામ જોડાશે તો જ આપણું નામ ઉપર આવશે, નહીં તો નહીં આવે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આપણે મારા માટે શું સારું છે એ નક્કી કરવું પડશે કે મારે શું કરવું જોઈએ, મારી માટે શું સારું છે. ઓકે, આપણે નેક્સ્ટ ફિલ્ડ પર જઈએ. અહીંયા આગળ 3 પ્રશ્ન ધોરણ 10 હોય કે 12 હોય, કોમર્સ, આર્ટ્સ, સાયન્સ અને ડિપ્લોમા. ડિપ્લોમા અને સાયન્સમાં લગભગ કઈ ફરક નથી. તમે ડિપ્લોમામાં જાઓ તો પણ સાયન્સના ડાયરેક્શનમાં જશો, સાયન્સ લેશો તો પણ એક ડાયરેક્શનમાં જશો. તો મોટામાં મોટા પ્રશ્નો 3 જ આવે, સાયન્સ, કોમર્સ કે આર્ટ્સ. હવે આપણે આમાંથી કઈ ફિલ્ડને નક્કી કરવું જોઈએ અને કઈ ફિલ્ડમાં આપણે જવું જોઈએ. ઓકે, તો કઈ ફિલ્ડ ઈઝી છે, કઈ ફિલ્ડ આસાન છે. ઓકે, તો આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ ઉપર જઈએ અને સમજીએ
ઓકે, અહીંયા આગળ આપણે એવી કઈ 5 કોમન મિસ્ટેક કરીએ છીએ એઝ અ પેરેન્ટ્સ, એઝ અ સ્ટુડન્ટ, આપણે એવી કઈ 5 ભૂલો કરીએ છીએ જેના કારણે આપણે રોંગ કેરિયર ડિસિઝન્સ લઈએ છીએ, પછી ધોરણ 10 હોય કે 12. અગર સૌથી પહેલી વસ્તુ કહું તો કમ્પેર વિથ અધર્સ. આપણે બીજા સાથે શું કરીએ છીએ? કમ્પેર કરીએ છીએ. શું કમ્પેર કરીએ છીએ આપણે બીજા સાથે? કે મારો માસીનો છોકરો અમદાવાદમાં આ હોસ્ટેલમાં આ ફિલ્ડમાં ગયો તો મારો છોકરો પણ ત્યાં જ જાય તો બંનેને સથવારો થઈ જાય, બંનેને કંપની મળી જાય, બંને જો 3 વર્ષ સાથે રહેશે તો એકબીજાને હાચવી લેશે. અરે આ 3 વર્ષનો સથવારો પાછળ પડશે ને તો એનો 1 લાખ કલાકનો સથવારો કોણ રહેશે? 3 વર્ષનો સથવારો તો તમે શોધી દેશો, પણ પેલા 1 લાખ કલાકનો સથવારા માટે કોણ આવશે? એટલે મારા માસીના છોકરાએ કયો કોર્સ લીધો અને એ જ કોર્સ મારો છોકરો લેવો જોઈએ, કમ્પેરિઝન કરવી જોઈએ નહીં. મારામાં શું કેપેબિલિટી છે, હું 1 લાખ કલાક કયું કામ બહુ સરળતાથી કરી શકું છું, એ પ્રશ્ન હોવો જોઈએ. તો ક્વેશ્ચન આપણે હંમેશા શું કહીએ? પ્રેસ્ટીજ. આપણે શું કહીએ? મારો વિદ્યાર્થી 3 લાખની ફી છે, 3 લાખ ફી છે, મોટી સ્કૂલમાં જાય છે, મોટા કોલેજમાં જાય છે. આપણે આપણી ફિલ્ડને શું નથી બનાવવાનું કે એને મોટું નામ આપવાથી એ મોટો નહીં બનશે, એના કામથી મોટો બનશે. તો આપણે મોટી ફીસ જોઈને મોટી કોલેજમાં એડમિશન તો લઈ લેશું, મોટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એડમિશન તો લઈ લેશું, પણ શું એ 1 લાખ કલાક એમાં કામ કરવા માટે શું એ વિદ્યાર્થી રેડી છે કે નથી, એ પ્રશ્ન પૂછવો પડશે. સૌથી પહેલા રોંગ ડિસિઝન લેવામાં આવે કમ્પેર વિથ અધર સ્ટુડન્ટ્સ. આપણે બીજાના કમ્પેરિઝનમાં જઈએ. અત્યારે સાંજ પડે એટલે આપણે બીજાના ઘરમાં જઈએ અને ત્યાં 4-5 પેરેન્ટ્સ બેઠા હોય અને ડિસાઈડ કરીએ તમારું બાળક શું કરવાનું, મારું બાળક ક્યાં કરવાનું. કમ્પેરિઝન. તો કમ્પેરિઝન ના હોવું જોઈએ. ઓકે, તો કમ્પેરિઝન ના હોવું જોઈએ. સેકન્ડ થિંગ, પેરેન્ટલ પ્રેશર. પેરેન્ટલ પ્રેશર આ બહુ સરસ વસ્તુ છે, આપણે બધાએ આ समझવાની જરૂર છે. हम सबको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं आपको सभी पेरेंट्स को कहूंगा कि इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए. पेरेंटल प्रेशर मतलब मम्मी पापा का प्रेशर. मम्मी पापा बेटे के पास बैठते हैं और मम्मी पापा छोकरा ने कहे कि मारू सपनू है कि तू डॉक्टर बनी जाए. કોનું સપનું છે? મારું સપનું છે કે તું ડોક્ટર બને. હું અહીંયા આગળ કહીશ, જે પેરેન્ટનું સપનું હોય ને એ પોતે જ ડોક્ટર બની જાય ને. ઓકે, એ શું કામ પોતાના છોકરાને ડોક્ટર બનાવવા છે? સપનું કોનું છે? મારું કે મારા છોકરાનું? મારું તો ડોક્ટર કોને બનવું જોઈએ? મારે ને. તો ચાલુ કરી દઈએ ભણવાનું પાછું, રાઈટ? તો આપણા સપનાના જે પડીકાઓ છે ને એ બાંધીને આપણા છોકરાઓ ઉપર નથી થોપવાના. આપણે જે છે બાળકોને જન્મ આપ્યો છે, બટ આપણે બાળકો ઉપર આપણા જે સપના છે એ થોપવા નથી જોઈએ, એ થોપવા ના જોઈએ. કહેવાનો મતલબ છે કે અગર હા પપ્પા ડોક્ટર છે, પપ્પા સીએ છે, યા પપ્પા વિચારે છે કે એને બનવું જોઈએ, તો છોકરા સાથે આપણે વાત કરી શકીએ કે બેટા ડોક્ટર બને તો આના આ ફાયદા છે, આના નુકસાન છે, તારે એન્જિનિયરિંગ કરવું હોય, બીસીએ કરવું હોય તો આના ફાયદા નુકસાન છે. અગર છોકરો યા છોકરી એગ્રી કરે છે, એ વાતથી સહમત થાય છે તો ઓકે. પણ એ કહેશે ના મને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, મને આ વસ્તુ નથી ગમતી, અને જો પછી પણ આપણે એના પર પ્રેશર કરીએ તો હમણાં જનું એક રિસેન્ટ એક્ઝામ્પલ 2025 નું મહારાષ્ટ્રનો એક છોકરો જે નીટની અંદર ટોપ આવ્યો. 2025 મહારાષ્ટ્ર નીટનો છોકરો ટોપ આવ્યો મહારાષ્ટ્રની અંદર. દિલ્હી એમ્સમાં એને એડમિશન મળી ગયું, દિલ્હી એમ્સમાં પહોંચી ગયો. 1 મહિનો થયો અને એક ચિઠ્ઠી લખી કે મારા મમ્મી પપ્પાને હું સમજાવી નથી શકતો અને મારા મમ્મી પપ્પા મારાથી સમજે એમ નથી, એટલા માટે જય શ્રી કૃષ્ણ, મારે ડોક્ટર નથી બનવું, અને કરી દીધું સુસાઇડ. કહેવાનો મતલબ બહુ સિમ્પલ છે, બહુ સિમ્પલ છે
કે આજના જે આ જેન્જીસ છે ને એ આંગળી ઉપર શું લઈને ફરતા હોય છે? સુસાઇડ નોટ લઈને ફરતા હોય. આમ થઈ ગયું સુસાઇડ, આમ થઈ ગયું સુસાઇડ. મારું એક જ વસ્તુ કેવી છે કે આજનો અત્યારે ટ્રેન્ડ ચાલે છે સુસાઇડનો. લાસ્ટ યરનો હજી એક બીજો દાખલો આપણા ગુજરાતનો, આપણા સુરતનો દાખલો. લાસ્ટ યર 2 છોકરા 10માનું રિઝલ્ટ આવવાનું હતું, એના 2 દિવસ પહેલા સુસાઇડ કરી દીધું. રિઝલ્ટ આવ્યાના 2 દિવસ પહેલા સુસાઇડ કર્યું. મમ્મીએ પૂછ્યું પેપર કેવું ગયું? મસ્ત ગયું મમ્મી, એકદમ મસ્ત, જબરજસ્ત. ઓકે, 2 મહિના સુધી રહીમાં રોજ ક્રિકેટ રમે, વેકેશનમાં જલસા કરે, રમે 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 જલસા કર્યા અને રિઝલ્ટની જેવી તારીખ આવી એના 2 દિવસ પહેલા સુસાઇડ નોટ લખી. અમને લાગે છે કે અમે પરીક્ષામાં ફેલ થશું અને અમને અમારા મમ્મી પપ્પાની સામે ફેલનું રિઝલ્ટ બતાવતા ડર લાગે છે, એટલે અમે કરી દઈએ છીએ સુસાઇડ. હવે વાત મજાની શું હતી ખબર છે? એ લોકોને ગુજરાત સરકાર પર ભરોસો નહોતો, કારણ કે 2 દિવસ પછી જ્યારે રિઝલ્ટ આવ્યું સુસાઇડ કર્યાના 2 દિવસ પછી, તો બંને પાસ જ થઈ ગયા. તો 2 દિવસ વેઇટ કર્યું હોતે તો ઓકે. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે આપણે જે પેરેન્ટલ પ્રેશર નાખીએ છીએ અને એ પેરેન્ટલ પ્રેશર એટલું ના વધી જાય કે પછી બાળક આપણને કહી ના શકે. અને હું સ્ટુડન્ટ્સને પણ કહીશ અહીંયા આગળ કે સુસાઇડ જે વસ્તુ છે ને, સુસાઇડ જેવું જે શબ્દ છે ને, એ બહુ અલગ છે. હું તમને એક નાની એવી વાત કહીશ કે અગર કોઈ સ્ટુડન્ટ સુસાઇડનું વિચારે, ભલે ને ગમે એટલો માર્ક્સ આવી ગયા હોય, ઓછા આવે વધુ આવે, કરોડોનું દેવું થઈ ગયું હોય, સુસાઇડ કરવાની શું જરૂર છે? કારણ કે તમે સુસાઇડ કરો તો થાય શું ખબર? હવે અહીંયા તો એઆઈ આવી ગયું, અહીંયા તો એઆઈ 2025 ને 26 માં આવ્યું. ઉપર છે ને એઆઈ ઓલરેડી 5 વર્ષ પહેલા જ આવી ગયું હતું. ઓલરેડી 5 વર્ષ પહેલા તે એઆઈ આવ્યું. હવે કોઈ પણ ત્યાં જાય ને એટલે પહેલા ત્યાં સિગ્નલ મૂકેલું હોય, ચેક કરે કે ભાઈ આ કેવી રીતે અહીંયા આવ્યો, નેચરલ ડેથથી આવ્યો કે સુસાઇડ કરીને આવ્યો. ઓકે, નેચરલ ડેથથી હોય તો એને ગ્રીન સિગ્નલ બતાવે અને જવા દે, જા. પછી નક્કી થાય નર્કમાં મૂકવો કે સ્વર્ગમાં મૂકવો. બરાબર છે? પછી જ્યાં પાટું મારવું હોય ત્યાં મારી દે, નર્કમાં પાટું મારે કે સ્વર્ગમાં પાટું મારે, મારી દે. અને જે સુસાઇડ કરીને ગયો હોય ને એને બતાવે રેડ લાઈટ. ભાઈ તું 15-20 વર્ષ વહેલો કેમ આવી ગયો? તને કોણે બોલાવ્યો તો અહીંયા? પછી ત્યાં ડબ્બા મૂક્યા હોય, 2 ડબ્બા, એ ડબ્બામાં નાખી દે, જા ભાઈ. અને પછી જ્યારે 10 દી 15 દી થાય ને પછી એ ડબ્બાને આમ ખંખેરી નાખે. પછી એ ડબ્બામાંથી આપણે યા તો યુપીમાં પડીએ, બિહારમાં પડીએ, દિલ્હીમાં પડીએ, મહારાષ્ટ્રમાં પડીએ, ગોવામાં પડીએ, ગુજરાતમાં પડીએ, ક્યાંય પણ પડીએ. અને આપણે શું કામ સુસાઇડ કર્યું હતું? 2 પેપરમાં ફેલ થશું, 1 પેપરમાં ફેલ થશું અને એટલા માટે સુસાઇડ કર્યું. હવે ઉપરથી પાછા રિટર્ન નીચે થઈ ગયા તો હવે પાછું ક્યાંથી શરૂ કરવાનું ખબર છે? પાછું નર્સરી કરવાનું, જુનિયર કરવાનું, પેલું બીજું બધું ભણવાનું. અરે ભાઈ, એ કરતા તો સારું એ હતું કે તું જે પેપરમાં ફેલ થયો તો એ પેપર જૂનમાં પાછા આપી દીધા હોતે તો પાછી આખી રામકથા ગાવી ના પડતે ને. તો સુસાઇડ કરવાનો તો કોઈ પ્રશ્ન બનતો જ નથી, કોઈ સેન્સ નથી બનતો. કહેવાનો મતલબ બહુ સિમ્પલ અને સ્ટ્રેટ છે કે આપણે પેરેન્ટલ પ્રેશરને શું કરવું પડશે? ઓછું કરવું પડશે. ત્રીજા નંબરમાં ઇગ્નોર ઇન્ટરેસ્ટ. મારો ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં છે ખબર જ નથી. હું સ્ટુડન્ટને કહું તારે શું કરવું છે કે ખબર જ નહીં. મેં કીધું તારો ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં છે? આ ઇન્ટરેસ્ટ કેવી રીતે આવે? ખબર નહીં, મને ખબર જ નથી પડતી મારામાં શું ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો કહેવાનો મતલબ છે જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એ આપણે ઓળખવો પડશે, નહીં તો પછી આપણા લાઈફના આગળના જે સમય છે ને, આગળનો જે સમય છે ને એ શું થઈ જશે? બહુ વધારે ભયાનક થશે કે આપણે એવી ફિલ્ડમાં કામ કરવું પડશે જ્યાં આપણે ઈચ્છતા નથી, જ્યાં આપણને મજા નથી આવતી, જ્યાં આપણે સ્માઈલ નથી આપી શકતા, જ્યાં આપણને કલાકો કલાક ઘડિયાળો જોવી પડે છે. કહેવાનો મતલબ બહુ સિમ્પલ છે, લેક ઓફ નોલેજ. આ ચોથો પોઈન્ટ છે. આપણે રોંગ ડિસિઝન એટલે કે ખોટી ફિલ્ડમાં કઈ રીતે જઈએ છે તો એમાં સૌથી પહેલું કામ છે કમ્પેર વિથ અધર, બીજું છે પેરેન્ટિયલ પ્રેશર, ઇગ્નોરિંગ ઇન્ટરેસ્ટ અને લેક ઓફ નોલેજ. મેં એક સીએ ને જોઈ લીધો સર. એ સીએ છે ને BMW ગાડીમાં અને મર્સિડીઝ ગાડીમાં ફરતો હતો અને એનું ઇન્સ્ટા પ્રોફાઇલ જોયું
એની લાઈફ તો સર બહુ જબરજસ્ત છે, એટલે મારે સીએ બનવું છે. શું કામ સીએ બનવું છે? કારણ કે એની ઇન્સ્ટાગ્રામની પ્રોફાઇલમાં જલસાવાળા ફોટો છે, એટલે મારે સીએ બની જઈએ તો મારી પણ આવી જ પ્રોફાઇલ બની જશે ને સર? અહીંયા આગળ આપણે લેક ઓફ નોલેજ, આપણને ખબર જ નથી કે સીએ ફિલ્ડમાં કરવાનું શું છે, સીએ ફિલ્ડમાં શું થાય. આપણે એને ઓક્ટોબર નવેમ્બર મહિનામાં જોયા જલસા કરતા, આપણે માર્ચ મહિનામાં જોયા 18 કલાક સુધી કામ કરતો તો, ખાવાનું તો મળતું, ઘરે 18-19 કલાકે આવતો તો પેલો સીએ, ત્યારે આપણે નહીં જોયું. મીન્સ આપણે કોઈ પણ ફિલ્ડને અડધું જ જોઈએ છે, આખું તો જોતા જ નથી. અને લેક ઓફ ડિસિઝન ને કારણે ખોટા ડિસિઝન્સ લેવાઈ જાય છે. શોર્ટ ટર્મ પ્લાનિંગ, અત્યારે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને પૂછું શું કરવાનું, મારા માસીના છોકરાએ, મારા નેબર હતો, પાડોશી હતો, મારો અંકલનો છોકરો, મારો કઝિન, એને આ કર્યું એટલે મેં આ કરી નાખ્યું, એટલે પછી મારું કામ થઈ ગયું. એને બીસીએ કર્યું હતું એટલે હું બીસીએ કરું. અત્યારે ટ્રેન્ડ બીસીએ નો નહીં, બીબીએ નો ચાલે. હવે કે પણ સ્ટુડન્ટ પૂછો ને, સર હવે બીસીએ જૂનું થયું, બીબીએ કરી નાખીએ તો બીબીએ કરી નાખીએ, હાલો. પણ બીબીએ માં શું આવે, બીબીએ નો ફૂલ ફોર્મ શું થાય ખબર છે? એને પૂછું બીબીએ એટલે શું, બીબીએ માં શું કરવાનું, એ ખબર નહીં. મને કીધું તું કોઈ કે મેં સાંભળ્યું હતું બીબીએ બહુ સારું છે, પેપરમાં વાંચ્યું હતું, રીલમાં વાંચ્યું હતું, પણ બીબીએ નો ફૂલ ફોર્મ નથી ખબર. અને સૌથી મોટી મજાની વાત શું છે ખબર છે? જ્યારે મને આશ્ચર્ય થાય, હું અત્યારે કોઈ સ્ટુડન્ટને પૂછું કે 10મું પાસ, 10માની એક્ઝામ આપી? હા આપી. આખો વર્ષ મહેનત કરી? હા સર બહુ મહેનત કરી. ટીવી નહોતા જોવા દેતા, મોબાઈલ ને હાથ લગાડ્યો તો આમ હાથ ખેંચી લેતા, અમારી સાથે બહુ ખરાબ થયું સર, બહુ મહેનત કરાવી, બધાએ મળીને, સ્કૂલ વાળા, ટ્યુશન વાળા, મમ્મી પપ્પા બધા પાછળ પડી ગયા હતા. બરોબર, એસએસસી પતી ગયું સર, હવે પૈતું, હવે બીજી વાર ન આવવું જોઈએ. ઓકે, પણ એને પૂછું કે ભાઈ એસએસસી નું પૂરું નામ શું, એસએસસી નું ફૂલ ફોર્મ શું, તે ખબર જ નથી. આખું વર્ષ મહેનત કરી પણ એસએસસી નું પૂરું નામ શું, સર એ તો મને ખબર જ નથી. ક્વેશ્ચન છે કે આપણે જે ટ્રેનમાં બેસવાના છે ને, એ ટ્રેન ક્યાં જવાની છે, કયા સ્ટેશન આવશે, ક્યાં જઈને સ્ટોપ થશે, આપણે કઈ ટ્રેનની ટિકિટ લીધી, ખબર જ નથી. બસ બધા કહેતા હતા બેસી જાય એટલે હું બેસી ગયો ટ્રેનમાં. ધેટ્સ અ પ્રોબ્લેમ. લેક ઓફ નોલેજ. શોર્ટ ટર્મ પ્લાનિંગ. શોર્ટ ટર્મ પ્લાનિંગ એટલે અત્યારે લોકો કે બુકને છોડો, કોમ્પ્યુટરને પકડો, કોમ્પ્યુટરનો જમાનો છે, કોમ્પ્યુટર શીખશો તો કામ થશે. હું તમને કહીશ કે 2025માં કોમ્પ્યુટરનો જમાનો હતો, હવે 2026માં કોમ્પ્યુટરનો નહીં, એઆઈ નો જમાનો છે. અને તમારે કંઈ નક્કી કરવું જ હોય તો તમે અત્યારે શું કરો છો, તમારું લોન્ચિંગ તૈયાર થાય છે, તમે અત્યારે લોન્ચ થવા માટે તૈયાર થવો છો. રોકેટ લોન્ચ થાય, પણ રોકેટ લોન્ચ થયા પછી તરત જ ફાયર ન થઈ જાય. અત્યારે 2026માં તમે તૈયારી કરી રહ્યા છો લોન્ચ થવાની. તમે લોન્ચ ક્યારે થશો? આજથી 5 વર્ષ પહેલા, આજથી 5 વર્ષ પછી, સોરી, તો 5 વર્ષ પછી એટલે ક્યારે લોન્ચ થશું? 2032માં. તો એ નક્કી કરો કે 2032માં મારા માટે શું કામનું હશે. અગર તમે એ નક્કી કરો છો કે 2026માં શું કામનું છે, એ જોઈને હું નક્કી કરું, તો પછી 2035માં મને ઓરેકલ કંપની, ટીસીએસ કંપની અને બાકી કંપનીની જેમ એક લેટર આવે, કાલથી તમારી જરૂર નથી, કામ પર નહીં આવતા. મીન્સ કે આજે પણ હું ભાખરી અને પરોઠા જ વિચારું અને જો પીઝા ના વિચારું તો કામ થશે નહીં. આજના સમયમાં બિઝનેસ ચાલશે તો કોનો ચાલશે? ભાખરી પરોઠાનો કે પીઝાનો? તો આપણે એવી ફિલ્ડ નક્કી કરવી પડશે જે આવનારા 10 વર્ષ ચાલવાની છે. એવી ફિલ્ડ નહીં કે 1-2 વર્ષમાં એ બંધ થઈ જશે. અગર ભાખરી પરોઠાની દુકાનો આજે ખોલું છું તો 1-2 વર્ષ ચાલશે, 3 વર્ષ ચાલશે, પણ 4 વર્ષ પછી એ શું થઈ જશે? બંધ થઈ જશે. તો મારે એવી ફિલ્ડ લેવી પડશે જે આવનારા 10 વર્ષ સુધી મને શું આપવો જોઈએ? બેનિફિટ અને એનો ફાયદો આપવો જોઈએ. યસ ઓર નો? જય હો. તો સુઈ જાય છે. અગર આપણે કેરિયરના ડિસિઝન લેવામાં અગર અહીંયા જ સુઈ જશું તો પછી કેરિયરના ડિસિઝન લીધા પછી 1 લાખ કલાક કામ કેવી રીતે કરીશું? ઓકે, કેવી રીતે કરીશું? પછી તો પપ્પાનું ગજવું અને આપણી આઈ એમ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ, મને તો આમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી આવતો, પૂરું થઈ ગઈ વાર્તા. ઓકે, સો ક્વેશ્ચન આપણે અહીંયા આગળ એક્ટિવલી કોઈને કોઈ ડિસિઝન્સ લેવા પડશે.
નેક્સ્ટ સ્ક્રીન તરફ આપણે જઈએ. અહીંયા આગળ ફટાફટથી આપણે આને સમજીએ. શોર્ટ ટર્મ થિંકિંગ પછીનો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ મિત્ર. આ તો બહુ કોમન પ્રશ્ન છે. મારો મિત્ર અને મારો જીગરી દોસ્ત જય અને વીરુની દોસ્તી છે અમારી. એ કોમર્સમાં ચાલ્યો જાય અને હું આર્ટ્સમાં ચાલ્યો જાઉં તો અમારી દોસ્તી તૂટી ગઈ. તો મારો દોસ્તાર મારાથી અલગ થઈ ગયો. તો આ સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ કે દોસ્તાર જે સ્કૂલમાં એડમિશન લે એ સ્કૂલમાં એડમિશન લેવાનું, એ જે ક્લાસમાં એડમિશન લે એ ક્લાસ પર જ લેવાનું. પછી પેરેન્ટ્સ કે એને સથવારો મળે ને એટલે ચાલે. આ સથવારાના ચક્કરમાં 1 લાખ કલાકની પથારી ફરી જાય. તો આપણે પેલા નક્કી કરવું પડશે કે એની માટે કઈ સ્કૂલ યોગ્ય છે, કયા ક્લાસીસ યોગ્ય છે, કઈ ફિલ્ડ યોગ્ય છે અને એ 1 લાખ કલાક કઈ ફિલ્ડમાં ટકવાનો છે. નેક્સ્ટ તરફ આપણે જઈએ. અહીંયા આગળ હવે કોઈ પણ ફિલ્ડને નક્કી કરતા પહેલા મારે કોમર્સ લેવું, આર્ટ્સ લેવું યા સાયન્સ લેવું એ નક્કી કરતા પહેલા મારે પોતાને ખુદને 3 પ્રશ્ન પૂછવા પડશે. પહેલો પ્રશ્ન, મારો ઇન્ટરેસ્ટ શું છે? અગર મને સ્વિમિંગ કરતા ન આવડતું હોય તો પણ મને આવડી જાય. ક્યારે આવડી જાય? જ્યારે મારો ઇન્ટરેસ્ટ હોય. અને જો મારો સ્વિમિંગ કરવાનો ઇન્ટરેસ્ટ જ ના હોય તો શું મને સ્વિમિંગ કરતા આવડે? કોઈ પણ વસ્તુ દુનિયામાં હોય, અઘરામાં અઘરી હોય, ઈઝીમાં ઈઝી હોય, કોઈ કરી શકતું હોય, ના કરી શકતું હોય, પણ જો મારો ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તો એને હું કરીશ ને કરીશ. 32મી એજ પર મને લાગે કે મારે દોડિયા રમવા જોઈએ, મારે દોડિયા શીખવું છે. પછી ભલે ને ક્લાસ જોઈન કરવા પડે અને કોઈની પણ લાઈનમાં ઘૂસી જાવ, ભલે બધાના સર્કલની પથારી ફરી જાય, પણ હું તો મારા દોડિયા રમીશ. જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તો બધું જ આવડી શકે છે. ઉંમરથી કોઈ ફરક નથી પડતો. ઓકે, કોઈ વસ્તુથી કોઈ ફરક નથી પડતો અને કોઈ પણ વસ્તુ આપણને રોકી નથી શકતી અગર મારો ઇન્ટરેસ્ટ છે તો. એટલે સૌથી પહેલો डिसीजन तो ये જ હોવો જોઈએ. सबसे पहला फैसला तो यही होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है. अगर मेरा इंटरेस्ट जहां पे है वहीं पे मैं क्या कर सकता हूं? काम कर सकता हूं. अगला पॉइंट लेते हैं क्षमता, एबिलिटी. मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी क्षमता क्या है. बहुत सारे लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को साइंस में लेना है, मैथ्स में लेना है. मेरा एक सिंपल सवाल है यहाँ पे स्टूडेंट से, 1/4 और 1/5 इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 1/4 या 1/5? प्लीज, 1/4 बड़ा है या 1/5 बड़ा है? ओके, जिन्होंने 1/4 लिया ना उनका लॉजिक अच्छा है. और अगर किसी ने बोला हो 1/5 तो उसको कभी लाइफ में साइंस नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए. क्योंकि वो लेगा तो फिर पापा का गजवाई खाली होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा. क्योंकि यहाँ पे अगर हमें एक छोटा सा लॉजिक नहीं क्लियर है, अगर छोटी सी लॉजिक्स क्लियर नहीं हो रही है तो फिर हम साइंस कैसे लेंगे? तो मैं उन स्टूडेंट्स को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, बोलूंगा नहीं कि भाई तुम साइंस का पार्ट 1 लो. आपको लेना है तो भाई बायो ले लो, चल जाएगा. आर्ट्स ले लो, चल जाएगा. लेकिन कॉमर्स और साइंस के ग्रुप ए में मत जाना अगर आपको 1/4 और 1/5 की समझ नहीं है. क्योंकि 10वीं तक आपने जो मैथ्स पढ़ा ना वो अलग है और 11वीं 12वीं में जो मैथ्स आएगा ना वो अलग है. वहां पे न्यूमेरिक मैथ्स था, यहाँ पे लॉजिकल मैथ्स है. अगर लॉजिकल मैथ्स में समझ नहीं आ रही है तो इंजीनियरिंग के अंदर, साइंस के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं, उसमें से कई लोग मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे ग्रुप में हैं, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की थी, जो आज आईएएस बने, जो आईपीएस बने. यानी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनना कोई गेम तो है नहीं, छोटी बात तो नहीं है. लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों का पूरी जिंदगी का सपना होता है आईपीएस बनने का, आईएएस बनने का. जब वो आईपीएस और आईएएस बन जाते हैं ना तो वो आधे से 1 महीना 2 महीने के बाद आईपीएस और आईएएस की जॉब को छोड़ देते हैं. जिनकी पूरी लाइफ का सपना होता है वो आईपीएस और आईएएस छोड़ देते हैं इतनी मेहनत के बाद. जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता वो पहुंच गए, फिर भी उन्होंने वो फील्ड क्यों छोड़ी? क्योंकि उसकी एबिलिटी नहीं थी, उसकी क्षमता नहीं थी. उसकी ये क्षमता नहीं थी कि पॉलिटिक्स प्रेशर को कैसे झेला जाए. उसकी ये क्षमता नहीं थी
कि लोगों की बातों को कैसे सॉल्व किया जाए। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर के एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा सूरत के अंदर, जो एमडी है, यानी कि एमडी बनने के लिए 12 साल की पढ़ाई लगती है। 12 साल की पढ़ाई के साथ साथ 45 से 50 लाख रुपए का खर्चा लगता है, और उसकी लाइफ के 12 साल और 45-50 लाख रुपया खर्चा करने के बाद एमडी तो बन गया, लेकिन एमडी बनने के बाद 1-2 महीने के बाद उसने पूरी की पूरी डॉक्टर की फील्ड छोड़ दी। ऐसे एग्जाम्पल अपने सूरत में बहुत सारे हैं। क्यों छोड़ दी? क्योंकि वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। रात को 2:30 बजे फोन आ जाए तो उसको लगता है कि यार 2:30 बजे कहां जाए, कभी 4 बजे फोन आ रहा है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी कॉल आ जाए, उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। वो सोचता है कि ऐसी लाइफ जीने से अच्छा तो मैं भाई पानी पूरी की लारी खोल दूं, उसमें तो कम से कम मुझे टाइम पे खाने मिलेगा, टाइम पे काम मिलेगा। यानी कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने लाइफ में बहुत बड़ा चीज अचीव किया, सब कुछ ले लिया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ हासिल कर दिया, उसके बाद हंसते हंसते सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने जब फील्ड चॉइस की ना, तभी ये चीज नहीं चेक की कि क्या इसमें मेरी एबिलिटी है, क्या मेरी इसमें कैपेबिलिटी है, क्या मैं ये प्रेशर को हैंडल कर सकता हूं, क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर बनने का सपना है। लेकिन क्या पेरेंट्स ने कभी पूछा है बेटा तू डॉक्टर बन जाएगा और रात को 2:30 बजे तुझे कॉल आएगा तो तू रात को 2:30 बजे क्या तेरे हॉस्पिटल में जाकर के उसका इलाज कर पाएगा? यस और नो। अगर नहीं कर पाएगा तो तुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो फील्ड में हम जाने वाले हैं उसकी एबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि वो मैं बन जाऊंगा, उसके बाद क्या मैं वो काम को हैंडल कर पाऊंगा, क्या मैं वो प्रेशर को हैंडल कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग मेरे पास जॉब के लिए आते हैं, सर जॉब करनी है, मुझे पता होता है, मुझे तो पता ही है सर जॉब करनी है, जॉब करनी है। ठीक है कल से आ जाना, 3 दिन का ट्रायल है। 10 लोग ज्वाइन करते हैं, पहले 2 घंटे के बाद 2 गायब, फिर शाम तक और 2 गायब, दूसरे दिन और 2 गायब, और तीसरा दिन आते आते ट्रायल का बाकी सब भी गायब। यानी कि करना है लेकिन प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा किसी भी फील्ड में चूज करने से पहले। नेक्स्ट है लक्ष्य। हमारा लक्ष्य नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के लिए मैं जब वो 11वीं पढ़ रहा है, 12वीं पढ़ रहा है, मैं बोलो क्या बनना है बेटा? सर मुझे ना डॉक्टर बनना है। और उसने फील्ड कौन सी ली होती है? साइंस में ग्रुप ए लेके बैठा है। उसको पता ही नहीं है कि डॉक्टर बनने के लिए ग्रुप ए लेना है कि ग्रुप बी लेना है। पूरा पढ़ाई खत्म होने के बाद बोलता है अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ग्रुप ए नहीं ग्रुप बी लेना पड़ता है, मुझे तो पता ही नहीं था। लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी 12वीं के बाद बोलेंगे मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे नीट की एग्जाम देनी है, मुझे यहाँ पे नीट की एग्जाम देनी है, जी एडवांस की एग्जाम देनी है, जी मेन की एग्जाम देनी है। ये सब तैयारी तो करेंगे, लेकिन अगर मैं उनसे एक सवाल पूछूं ना कि इंडिया में कितनी आईआईटी है, तो उसको पता ही नहीं है कि इंडिया में कितनी आईआईटी है। कितना कट ऑफ होता है पता नहीं है, कितनी सीट होती है पता नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे रिक्शा पकड़ने के लिए 4 रास्ते पे खड़े ऐसे बोलेंगे रिक्शा मेरे को लाल दरवाजा जाना है, छोड़ दे मेरे को। यहाँ पे फील्ड चॉइस करने बैठे हैं और हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, कौन कौन सी चीजों के लिए मुझे कौन सी एग्जाम देनी चाहिए, या वहां पे कट ऑफ क्या है, वहां पे सीट क्या है। तो ये वैकेशन का जो टाइम है ना वो रिसर्च का टाइम है। यहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा और मम्मी पापा को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए कि रिसर्च कैसे करें। एक मोबाइल खरीदने के लिए हम 50 जन को पूछते हैं और 50 दुकान पे जाकर के ट्राई करते हैं। अगर कपड़े लेते हैं ना, 5 जोड़ी कपड़े लेने हैं, जूडियो में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, 50 कपड़े निकालने के बाद उसमें से 5 जोड़ी कपड़े डिसाइड करते हैं और वो 5 जोड़ी कपड़े को ट्रायल रूम में जाके ट्राई करते हैं। और वो ट्राई करने के बाद 5 जोड़ी कपड़े में से 3 जोड़ी कपड़े रिजेक्ट हो जाते हैं ट्राई करने के बाद। फिर बचे कितने जोड़ी कपड़े? 2 जोड़ी कपड़े। अब वो 2 जोड़ी कपड़े में भी हम फिर प्राइस टैग देखते हैं, कितने का है ये, अच्छा ये इतने का, छोड़ दो ये, छोड़ दो, एक ही ले लेते हैं। यानी कि 50 जोड़ी कपड़े के बाद हम एक जोड़ी कपड़ा डिसाइड करते हैं। कैसे? ट्राई करने के बाद। यहाँ बच्चा ट्राई नहीं करता है, बीसीए करना है, बीसीए के एडमिशन ले लिया, फी भर दिया और 1 साल के बाद
बोलता है पापा एक बात बताओ, बीसीए ना मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है पापा। तो ट्राई नहीं किया। वेकेशन का 2 महीना हमारे पास क्यों है? ट्राई करने के लिए कि मुझे जिस फील्ड में जाना है उसके 5 एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। अगर मुझे बीसीए करना है तो मुझे 5 लोगों से मिलना है। हम सलाह भी किसकी लेते हैं मालूम है? वो पान वाले शिवम, जो पान का गल्ला है शिवम वाला भाई, उसको पूछते हैं बीसीए करना चाहिए। उसको क्या मालूम बीसीए मतलब क्या है? तो सलाह किसकी लेनी चाहिए? जिसने बीसीए किया है या जिसने बीसीए नहीं किया है। तो बीसीए करना है तो 5 लोगों को मिलना पड़ेगा जो बीसीए करने के बाद 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं। उसको जाके मिलो, उसके घर पे जाके बैठो, बोलो कि भाई तुमने बीसीए कौन से साल में खत्म किया, कैसा चल रहा है कामकाज, क्या है। अगर आप उनसे मिलोगे तो सही नॉलेज मिलेगा कि बीसीए करने के बाद उसकी लाइफ ऐसी है, तो क्या मैं बीसीए करूंगा तो ये वाली लाइफ मुझे पसंद है तो मैं बीसीए करूंगा, अगर इसकी लाइफ ही मुझे नहीं पसंद है तो मैं बीसीए क्यों करूं, क्योंकि वो करने के बाद मैं भी तो वही बन जाऊंगा। अगर डॉक्टर बनना है तो 5 डॉक्टर से मिलो, वो 5 डॉक्टर को देखो कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ क्या है, वो कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, उनको पहले देखो और फिर सोचो कि अब मैं डॉक्टर बनने के बाद इसके जैसा बनूंगा, चलेगा मुझे, मैं ऐसी लाइफ जीना पसंद करता हूं तो फिर मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। इज दैट क्लियर? जय हो, दैट्स ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा यहाँ पे। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर किसी बच्चे को 80-90% आ जाए, 80% और 90% आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? 80-90% आ गया तो इसको साइंस लेना है, 50-60 आ गया तो इसको कॉमर्स लेना है, और जो 50 के नीचे आ जाए ना वो बेचारा गलती से पूछ लेना पापा मैं कौन सी लाइन लूं, पापा बोलता है तू लाइन नहीं पाइपलाइन ले ले, तू लायक ही नहीं है पढ़ने के लिए। मतलब कि हम परसेंटेज देख करके डिसाइड करते हैं उसका 40 साल का भविष्य, वो भी कितने दिन में? 6 पेपर और 3 into 6 18 घंटे में उसकी पूरी लाइफ हम डिसाइड करते हैं कि ये क्या करेगा। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? अगर ऐसे ही होता तो सचिन तेंदुलकर अभी घर पे बैठा होगा, वो 18 बार नॉट जीरो पे डक पे आउट हुआ तो क्या उसको निकाल दिया गया? तो 18 बार जीरो पे आउट हो गया, जा भाग जा, तेरे को लेना ही नहीं है अभी। तो हम क्या इसके ऊपर डिसाइड करेंगे, परसेंटेज के ऊपर, कि भाई तुझे लाइन लेनी है कि पाइपलाइन लेनी है? तुझे 50% आ गया तो तू साइंस नहीं ले सकता, तुझे 80 आ गया तो तू कॉमर्स और आर्ट्स नहीं ले सकता, तुझे 90% आए बेवकूफ लड़का, तुझे 90% आया, तुझे साइंस ही लेना चाहिए। जबरदस्ती उसको इंटरेस्ट आर्ट्स में है, 90% लाया तो भी प्रॉब्लम, 50% लाया तो भी प्रॉब्लम। यानी कि वो बर्गर का जो टिक्की होता है ना उसके जैसा, इधर भी सीखता है इधर भी सीखता है, बेचारा करेगा क्या? यानी कि सारी चीज परसेंटेज के ऊपर डिसाइड होती है, और वो भी कितने परसेंटेज के ऊपर? 18 घंटे की पढ़ाई के ऊपर, 18 घंटे की एग्जाम के ऊपर उसकी 40 साल की लाइफ डिसाइड की जाती है। कैसे पॉसिबल है? यानी ये मानना बिल्कुल गलत है कि 50% वाला साइंस नहीं कर सकता, ये मानना गलत है। 50% वाले ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे जिन्हों के 45-50% आने के बाद भी साइंस लिया लेकिन वो टॉप पे है, और ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो 90% लाने के बाद साइंस में जाने के बाद 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ के घर पे बैठे। तो ये मानना बिल्कुल बेकार है कि हम परसेंटेज के ऊपर डिसाइड करें कि मेरे को आर्ट्स कॉमर्स या साइंस लेना है, ये बिल्कुल गलत है। यानी कि हम होशियार स्टूडेंट्स को साइंस देंगे, मेहनती स्टूडेंट को कॉमर्स देंगे, यानी मेहनत नहीं करनी है आराम करना है तो कॉमर्स कर दे। भाई साइंस तेरा काम नहीं है, तू उतनी मेहनत नहीं कर पाएगा, तू एक काम कर आर्ट्स ले ले। और हम लोग आर्ट्स को क्या बोलते हैं? अगर लाइफ में कुछ भी ना करना हो, सिर्फ डिग्री चाहिए तो आर्ट्स कर लो। आर्ट्स में कोई मेहनत नहीं होती है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट कैसे होते हैं? डफर होते हैं, होशियार नहीं होते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आज दुनिया में जितने भी टॉप पे है ना, जितने भी लोग टॉप पे हैं वो आर्ट्स से हैं, कॉमर्स और साइंस से नहीं है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसके परसेंटेज के ऊपर हम लोग ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। कॉमर्स करने के बाद उसके पास सीए सीएस बनने के भी ऑप्शंस है, और आर्ट्स करने के बाद
वो क्या बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईपीएस कर सकता है। यहाँ पे वो बहुत सारी डिजाइनिंग स्किल्स, वेब डिजाइनिंग स्किल्स और आर्टिस्ट की फील्ड में वो आगे जा सकता है। आज के टाइम में डिजिटल क्रिएटर सबसे बड़ा फील्ड है। आज हम सोशल मीडिया को देख रहे हैं कि आज एक सोशल मीडिया पूरे के पूरे क्या कर रहा है, सबको डरा के रखा है। मतलब आज के दिन में अगर कोई किसी से डरता है तो किससे डरता है, सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया का क्रिएटर कहां से आएगा, आर्ट से ही तो आएगा। ओके, तो यहाँ पे आर्ट्स जो है वो भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे सलाह नहीं। अगर मुझे साइंस लेना है और मैं कॉमर्स स्टूडेंट से सलाह ले रहा हूं और कॉमर्स वाले को पूछता हूं, वो बैंक में जॉब कर रहा है और बैंक वाले से पूछ रहा हूं कि इसको साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, सवाल किससे कर रहे हैं आप? बैंक वाला कैसे बता सकता है कि साइंस बेटर फील्ड है या नहीं? नेक्स्ट, यहां पे अगर आप 10वीं के बाद डिसाइड करते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे ग्रुप ए लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ ग्रुप ए लेने के बाद, साइंस का ग्रुप ए लेने के बाद सिर्फ इंजीनियर नहीं बन सकते, इसमें एक से एक अच्छी अच्छी फील्ड है। मैं आपको बताऊंगा, आज के टाइम में अगर आर्किटेक्ट बनना है, आर्किटेक्चर बनना है, जब तक इंसान का अस्तित्व रहेगा, जब तक मैं और आप हो, तब तक आर्किटेक्चर की डिमांड है। क्योंकि हम इंसान घर के बगैर कहां रहेंगे, और हमारा जो घर है, हमारा सपनों का महल है, वो कौन बनाता है, आर्किटेक्चर। तो आप ग्रुप ए लेने के बाद आर्किटेक्चर में जा सकते हैं। डिफेंस में एनडीए में जाना है, नेवी में जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेवी और एनडीए के लिए क्या कर सकते हैं, आप डिफेंस में जा सकते हैं। उसके लिए आपको कंपलसरी, अगर मुझे एनडीए में जाना है तो मुझे कंपलसरी ग्रुप ए लेना पड़ेगा साइंस का। अगर मेरा सपना है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, एनडीए में जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो फिर मेरा चॉइस क्या होगा, मैथ्स। अगर मुझे एविएशन में जाना है, पायलट बनना है, मेरा सपना पायलट बनने का है, या फिर मुझे एयरफोर्स में जाना है, तो मुझे कंपलसरी क्या लेना पड़ेगा, साइंस का ग्रुप ए ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन और कोई चॉइस नहीं है। ओके, हाँ, सबसे बेस्ट चीज क्या है, यहाँ पे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम रहता है, चाहे आप ग्रुप ए लो चाहे ग्रुप बी लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम है। सिर्फ चेंज क्या होता है, मैथ्स और बायो। अगर ग्रुप ए में जाओगे तो मैथ्स मिलेगा, ग्रुप बी में जाओगे तो बायो मिलेगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगर मैं ग्रुप बी में जाता हूं तो बस सबको इतना ही पता है, ग्रुप बी मतलब डॉक्टर, डॉक्टर मतलब ग्रुप बी। अगर मुझे ग्रुप बी में जाना है तो मैं डॉक्टर बनूंगा, और डॉक्टर बनना है तो मुझे ग्रुप बी में जाना है। उतना ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। फिजियोथेरापी, फिजियोथेरापी आने वाले टाइम में सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन बनने वाला है। क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चों को क्या हो रहा है, मम्मी हाथ बहुत दुख रहा है, मम्मी पैर बहुत दुखते हैं, ये फिजियोथेरापी। यानी कि आने वाले टाइम में फिजियोथेरापी फील्ड सबसे अव्वल पे होगा, जिसके अंदर हम लोग फिजियोथेरापी के लिए काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जाना है, फिर बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, तो भी आप ग्रुप बी को चूज कर सकते हैं। और ग्रुप बी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये पूरी पीपीटी मैं आपको शेयर करूंगा ताकि आप अपने चॉइस के सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सके। और आगे अगर किसी भी पेरेंट्स को या स्टूडेंट को इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो 1-to-1 काउंसलिंग मेरे साथ कर सकता है, ताकि मैं उन्हें एक परफेक्ट गाइडेंस दे सकूं। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मानना है, रॉन्ग फील्ड में नहीं जाना है। वो फील्ड होनी चाहिए जहां पे हमारे नाम के साथ साथ हमारा काम भी बोलना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बी के बाद यहाँ पे कौन सी एग्जाम देनी चाहिए, ये भी प्रॉब्लम है। हमको पता नहीं है कि मुझे आईआईटी में जाने के लिए कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर मेरा सपना आईआईटी है तो मुझे जी क्या देना पड़ेगा, मेन देना पड़ेगा और जी एडवांस देना पड़ेगा। अगर मैंने जी मेंस क्लियर किया लेकिन जी एडवांस क्लियर नहीं किया तो मैं कहां पे जा सकता हूं, एनआईटी में जा सकता हूं, लेकिन आईआईटी में नहीं जा सकता। आईआईटी में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी मेंस और जी एडवांस दोनों ही क्लियर करना पड़ेगा। अगर मेडिकल में जाना है तो नीट क्लियर करना है। गुजरात के अंदर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, गुजरात की किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना है, ओनली वन चीज, गुजकेट करना है।
उसके अलावा आर्किटेक्चर में जाना है तो मुझे नाटा की एग्जाम देनी पड़ेगी। इसमें 2 एग्जाम होती है, एक ड्राइंग की एग्जाम होती है जहां पे मुझे 3D ड्राइंग बनाना पड़ेगा, और दूसरा एग्जाम्स होता है इसके अंदर जो नॉर्मल सेम टू सेम ये नीट जैसा एग्जाम होता है, सॉरी जी जैसा एग्जाम होता है, सेम टू सेम जी मेन और नाटा का एग्जाम लगभग सेम रहता है, लेकिन इसमें एक अलग से पेपर आता है जहां पे मुझे ड्राइंग्स की स्किल्स मेरे अंदर होनी चाहिए। अगर मैं ड्राइंग बना ही नहीं सकता और मैंने आर्किटेक्चर की फील्ड ले ली तो मैं यहाँ पे फंस गया, तो फिर मैं यहाँ पे अटक गया। तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन सी एग्जाम देनी पड़ेगी, मुझे कौन सी ट्रेन पकड़नी है, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर साइंस के बाद मैं अगर कहूं किसी को कि साइंस क्यों पसंद करना चाहिए, आप बोलोगे सर साइंस लेने के बड़े बड़े 2-3 फायदे बता दो ना। तो सबसे पहला फायदा कि साइंस वाला स्टूडेंट किसी भी चीज को अलग अंदाज से देखना है। अगर आपको ये जो पर्दा है, जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन जब साइंस का स्टूडेंट इसको देखता है तो उसको देखने का अंदाज उसका बदल जाता है। जब दुनिया मान लेती है ना कि ये है, तब एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों है, और वो सवाल करने वाला बंदा हमेशा साइंस का होता है, क्योंकि साइंस वाला बंदा हमेशा सवाल करता है कि ये जो तुम मान रहे हो है वो है क्यों। यानी उसके सोचने की, उसकी तार्किक शक्ति, उसकी लॉजिकल थिंकिंग इतनी ज्यादा हो जाती है साइंस करने के बाद कि वो किसी भी चीज को इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसके पीछे उसका लॉजिक्स और उसका तार्किक शक्ति उसके अंदर बढ़ जाती है। दूसरा, साइंस करने वाला बंदा कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि साइंस राजा है। क्या है? राजा। साइंस करने के बाद आप कॉमर्स में भी जा सकते हो, आर्ट्स में भी जा सकते हो, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स करने के बाद आप साइंस में नहीं जा सकते। ओके, ये भी इसका दूसरा फायदा है, लेकिन नुकसान भी है, क्योंकि सिक्के के हमेशा एक पहलू नहीं होते हैं, उसके हमेशा 2 पहलू होते हैं। अगर सिक्का एक तरफ से देख लिया जाए और दूसरा ना देखे तो फिर हम फंस जाएंगे। ओके, मैं आगे बताऊंगा। इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं, लेकिन फायदे ये हैं। तीसरा बड़ा फायदा इसके अंदर है कि अगर आप साइंस करके जाते हैं तो आपका पैकेज कम से कम, साइंस के स्टूडेंट्स का पैकेज कम से कम 15 से 20 लाख के ऊपर का होता है। यानी कि इनकम के मामले में, पेमेंट के मामले में कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस में हमेशा साइंस का स्टूडेंट हमेशा टॉप पे होता है। ओके, ये 3 बड़े फायदे हैं साइंस की स्ट्रीम को चॉइस करने के। अगला पॉइंट मैं बताऊंगा यहाँ पे, साइंस के फायदे के बाद अब आते हैं हम कॉमर्स। कॉमर्स यानी बिजनेस, जिसका हिसाब पक्का है। अगर आपने अपने बच्चे को 100 रुपया दिया और वो 100 रुपये का हिसाब मुझे पक्का लाके देता है, 100 रुपये का पूरा हिसाब मुझे दे सकता है, तो उसको कॉमर्स लेना है। अगर आपने उसको 100 रुपया दिया, उसका हिसाब में वो गोल गवारा कर रहा है, उसका हिसाब नहीं दे पा रहा है, तो उसको कॉमर्स करना चाहिए नहीं। क्योंकि अगर वो 100 रुपए के हिसाब में, घर के हिसाब में ही क्लियर नहीं है, तो फिर कंपनी का हिसाब कैसे करेगा? राइट? तो यहां पे सिंपल है कि अगर उसको 40 रुपया दिया, 20 लिया, फिर 60 दिया, फिर 30 लिया, तो अब उसके पास कितना बचा? अगर इसका जवाब वो दे सकता है तो वो कॉमर्स में जा सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे अगर उसको लीडर बनना है दुनिया में, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट चाहिए। बिना मैनेजमेंट के कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता, चल नहीं सकता। हम जहां कहीं पे भी काम कर रहे हैं, उस बिजनेस का कोई ना कोई एक बॉस है, कोई ना कोई एक मैनेजर है जो उस बिजनेस को चला रहा है, और उसको चलाने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो वाणिज्य शास्त्र, यानी कि यहाँ पे वाणिज्य व्यवसाय, यानी जिसको हम बीए कहते हैं, और यहाँ पे बीए को सीखने के बाद वो बीबीए अच्छे से कर सकता है। अगर जिसने बीए को, जिसका फेवरेट सब्जेक्ट बीए है, वो आगे अपनी लाइफ, अपना करियर बीबीए में बढ़ा सकता है। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स, जैसे वस्ती गणतरी हो गई, पॉपुलेशन हो गया, जीएसटी कितना % चार्ज होना चाहिए, पेट्रोल का भाव क्यों बढ़ गया, क्यों कम हो गया, वो ईरान, वो यहाँ पे अमेरिका क्यों लड़ रहा है, वो लड़ने से गोल्ड का प्राइस कम होगा या बढ़ेगा, इन सवालों के जवाब कौन देता है? अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिस्ट दे सकता है। अगर उसको इन सवालों में इंटरेस्ट है कि अमेरिका और ईरान लड़ रहा है तो उसमें मेरा फायदा और नुकसान क्या है, अगर वो ढूंढ सकता है तो उसके लिए कॉमर्स है।
लेकिन वो बोलेगा ईरान और अमेरिका लड़ रहे तो लड़ने दो, मेरा क्या जाता है, तो उसको कॉमर्स नहीं लेना चाहिए। दैट्स अ सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स के अंदर कौन से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? कॉमर्स के अंदर जाने के बाद वो लोग यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी यानी स्टॉक मार्केट के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, और कमोडिटी मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। वो लोग जाकर के आगे बैंकिंग और फाइनेंस सेगमेंट में आगे जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में जिसका बहुत ज्यादा डिमांड है वो है डेटा एनालिसिस का, और ये डेटा एनालिसिस की फील्ड भी कॉमर्स का स्टूडेंट्स यहाँ पे कर सकता है। ओके, अगला पॉइंट की तरफ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा फास्ट लेवल पे जाएंगे। अगर किसी को कहीं कंफ्यूजन हो तो लास्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस रखेंगे जहां पे मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। कॉमर्स के प्रवाह के लिए अगर आपको कॉमर्स में कौन सा स्टूडेंट जा सकता है? जिसको गणित में इंटरेस्ट हो, नंबर्स में इंटरेस्ट हो, अगर वो बिजनेस में इंटरेस्ट रखता हो, या फिर उसको अपने कैरियर के अंदर ऐसा चाहिए कि मैं एक सिग्नेचर करके 40,000 ले लूं और एक सिग्नेचर के ऊपर कंपनी चले या ना चले मेरी सिग्नेचर डिसाइड करेगी, मेरी सिग्नेचर की कीमत होनी चाहिए, तो वो कॉमर्स कर सकता है। क्योंकि कॉमर्स करने के बाद वो दो ऐसे प्रोफेशन चूज कर सकता है, सॉरी 3 प्रोफेशन चूज कर सकता है जिसके अंदर सिग्नेचर की बहुत ज्यादा कीमत है। वो सीए बनेगा तो चाहे कि दुनिया का कितना भी बड़ा एआई आ जाए, लेकिन बिना सीए की सिग्नेचर के बगैर उसका कोई भी प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। अगर वो कंपनी के अंदर शेयर्स इंट्रोड्यूस करना चाहता है, आईपीओ लाना चाहता है, तो सीएस की सिग्नेचर के बगैर कोई भी कंपनी अपना आईपीओ नहीं ला सकती। सीएफए यानी शेयर्स के प्राइस, गोल्ड के प्राइस, कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे कम होंगे, इसकी सिग्नेचर कौन करेगा? सीएफए करेगा। तो यहाँ पे अगर वो सिग्नेचर्स के ऊपर हजारों रुपए कमाना चाहता है और प्रतिष्ठा मतलब उनके नाम को आगे करना चाहता है, तो डेफिनेटली कॉमर्स फील्ड उसके लिए है। क्योंकि यहाँ पे वो मैनेजमेंट भी कर सकता है, प्रोफेशनल स्टडी भी कर सकता है, और मैथ्स और बिजनेस उसका अगर इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, उसको बिजनेस करने में और मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो वो कॉमर्स कर सकता है। अगले पॉइंट पे जाते हैं यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये ऑलरेडी कवर है। ओके, यहाँ पे 12th के बाद मैंने बता दिया है ऑलरेडी, थोड़ा आगे जाते हैं। 12th के बाद आज के टाइम पे 3 बड़ी डिग्री है जो स्टूडेंट्स इसके पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी 3 कहानी यही है कि सर सीए करे या एसीसीए करे या फिर यूएससीए में करे या यूएससीपीए करे। ये आज के टाइम का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो उसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूं कि सीए जो है वो राजा है। क्या है? राजा है। अगर आप एसीसीए करते हैं, अगर यूएससीपीए करते हैं, यूएससीए में करते हैं, तो आपको डिग्री मिल जाएगी, 10-15 लाख की जॉब मिल जाएगी, लेकिन सिग्नेचर करने की जो कीमत मिलेगी ना, वो इसमें नहीं मिलेगी, वो सिर्फ सीए में ही मिलेगी। तो सीए कुछ लोग एडमिशन लेने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट एडवर्टाइज करते हैं, एसीसीए करोगे ना तो इंडिया में नहीं, आपको टोटल 92 कंट्रीज में जॉब मिलेगी। तो सीए करने के बाद भी 92 कंपनी में जॉब मिलती है, वर्षों से मिलती थी, उसमें कौन सी नई बात है? यानी लैक ऑफ नॉलेज। और हम ऐसे कोर्स के पीछे पैसा वेस्ट कर देंगे जहां पे आगे जाने के बाद जितनी कीमत और जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। तो अगर आप सीए करने के लिए कैपेबल नहीं हो, सीए आपको हार्ड लगता है, लेकिन सीए जैसा कुछ करना है लेकिन बिल्कुल सीए नहीं करना है, तो आपके पास डेफिनेटली एक ऑप्शन है एसीसीए। ये इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही कोर्स है, लेकिन इसकी सिग्नेचर वैल्यू, स्टैट्यूटरी वैल्यू, गवर्नमेंट वैल्यू नहीं है। ये पूरी तरीके से एक प्राइवेट कोर्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करना चाहता है और उसको थियरी नहीं पसंद है, उसको हमेशा एक ही सवाल रहता है, अकबर क्यों आया, अकबर क्यों गया, अगर अकबर आया और अकबर गया उसमें मुझे क्या लेना देना, साइन थीटा ये कोस थीटा सीख के मुझे लाइफ में क्या मिलने वाला है, ये साइन थीटा कोस थीटा सीख के मैं मेरा लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा हूं। अगर ऐसे सवाल आपके अंदर है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, बीवॉक। क्योंकि इसमें ना अकबर की कोई कहानी होगी,
ना बीरबल की कोई कहानी होगी। ओके, कब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हमला किया, कब अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, ये सब जानने की इच्छा नहीं है। जो किया किया, मुझे क्या करना है, ये सवाल अगर मेरे अंदर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीवॉक। क्योंकि बीवॉक के अंदर सिर्फ 30% बुक पढ़नी पड़ती है, यानी कि आप बीकॉम करने के बाद जब ये पूरी बुक पढ़ते हो उसकी 30% बुक आपको बीवॉक में पढ़नी है और 70% इसमें प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, कॉलेज में जाके नहीं बैठना है, यहाँ पे इंटर्नशिप मिलती है 6 घंटे की। कॉलेज में आपको कॉलेज में सिर्फ 2 आवर्स जाना है, 4 घंटे कॉलेज में नहीं बैठना है, किसी कंपनी में जाना है जो मेरा इंटरेस्ट है, मुझे जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड की कंपनी में जाकर 4 घंटे जॉब करनी है, अर्निंग भी करना है। फायदा क्या होगा कि जो फीस भरनी है वो मम्मी पापा को नहीं भरनी पड़ेगी, मेरे इंटर्नशिप की फीस ही भरी जाएगी। दूसरा फायदा क्या है, एक्सपीरियंस मिलेगा। स्टूडेंट 4 साल 5 साल पढ़ाई करने के बाद जब जाता है तो कंपनी वाले बोलते फ्रेशर को हम लोग जॉब नहीं देते, फ्रेशर है तू जा यहाँ से, उसको भगा देते हैं। तो वॉक करने के बाद उसके पास 3 साल का अनुभव होगा, 3 साल वो उसने कमाया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर 1 साल की पढ़ाई करने के बाद बीवॉक करने के बाद 1 साल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी तो क्या होगा, बीकॉम कर रहा होगा, बीबीए कर रहा होगा, बीसीए कर रहा होगा, अगर उसने 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो उसको कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन बीवॉक करने के बाद 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देगी, अगर छोड़ देता है कोई स्टूडेंट तो उसको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। कौन सी डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा की। और 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देगा तो उसको एडवांस डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। और 3 साल पूरा करेंगे तो उसको बैचलर ऑफ वोकेशनल की डिग्री मिलेगी। यानी कि आज के टाइम में अगर मुझे फ्रेशर बन के नहीं रहना है, मम्मी पापा के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना है, तो मुझे एक ही कोर्स करना चाहिए, बीवॉक करना चाहिए। बीवॉक बैंकिंग फाइनेंस में भी होता है, बीवॉक कॉमर्स में भी होता है, सभी फील्ड में बीवॉक आज के टाइम पे अवेलेबल है और ये सबसे बेहतर। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के बाहर आप किसी भी कंट्री को टच कीजिए, किसी भी कंट्री को हाथ लगाइए, हर एक कंट्री में 95% बच्चा इंडिया को छोड़ के दुनिया के हर देश में 95% बच्चा साइंस कॉमर्स आर्ट्स नहीं करता, वो बीवॉक करता है। अगर यहां से कोई स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाता है, यूके जाता है तो वो यही करता है, लेकिन इंडिया में इसको करने में हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि स्टेटस नहीं मिलता है ना, इसके लिए। ओके, क्वेश्चंस नेक्स्ट। बीवॉक में बहुत सारे ऑप्शन है, आप एविएशन में जा सकते हो, पेट्रोलियम केमिकल्स के अंदर जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। अराउंड 35 to 40 फील्ड से बीवॉक के अंदर, और दुनिया इसी को वैल्यू देती है सिवाय इंडिया के। ओके, नेक्स्ट। ओके, आर्ट्स, आखिरी पॉइंट। आर्ट्स में क्या होना है? अब आर्ट्स की बात आती है तो हम सोचते हैं आर्ट्स कोई फील्ड थोड़ी ना है, जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको बस ऐसे ही टाइम पास करना है वो आर्ट्स करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स करने वाला बच्चा हमेशा क्या होता है, साइकोलॉजी उसका अगर स्ट्रांग है तो हम लोग ने बहुत सारे जगह पे देखा होगा, मनोचिकित्सक। आज के टाइम पे हमारे जो जेनजीस है ना, वो हमेशा बोलते हैं मुझे समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे कोई समझता ही नहीं है। ये जो जेनजीस बोलते हैं ना, मुझे कोई नहीं समझता, मेरे मम्मी भी नहीं समझते, मेरे को कौन समझेगा, उसको कौन समझेगा? ये मनोचिकित्सक समझेगा, साइकोलॉजी वाला डॉक्टर समझेगा। क्योंकि आज के टाइम में सीबीएसई के अंदर हर स्कूल में हर क्लास के लिए कंपलसरी साइकोलॉजी टीचर को रखना सीबीएसई ने कंपलसरी कर दिया है। तो आर्ट्स वालों की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ गई, क्योंकि आज साइकोलॉजिस्ट की डिमांड इतनी है कि जितनी भी पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सीबीएसई की स्कूलें हैं, उन सब में इसकी डिमांड सबसे टॉप पे है। ओके, उसके बाद वो यहाँ पे डेफिनेटली आगे जाकर के इतिहास हो गया, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह करके वो आईपीएस, यूपीएससी, जीपीएससी की तैयारी और आईएएस की तैयारी डेफिनेटली कर सकता है। अगले पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ पे आर्ट्स कौन कर सकता है? जिसकी विजुअल स्किल अलग हो। अगर मैं कहूं, अगर मुझे खुद को पहचानना है, अगर मुझे खुद को पहचानना है कि मैं कौन हूं,
तो मुझे साइंस करना चाहिए। अगर मुझे दुनिया को मिलना है कि दुनिया कौन है, कैसी है, दुनिया को समझना है, तो मुझे कॉमर्स करना चाहिए। अगर मुझे दुनिया में अपने आप को नामांकित करना है, दुनिया मुझे जाने और दुनिया मुझे पहचाने, अगर ये मेरा सपना है, तो मुझे आर्ट्स करना चाहिए। क्योंकि आर्ट्स से वो लोग आते हैं जिनको हम लोग ऑलरेडी फोटो में देख चुके हैं, शाहरुख खान से लेके सलमान खान से लेके, ये सब आर्ट्स के स्टूडेंट्स है, सब आर्टिस्ट है, और उनका सपना क्या है? विजुअलाइजेशन आर्ट्स। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप मीडिया के अंदर जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, देन आफ्टर आप रिपोर्टर बन सकते हैं, मास मीडिया के अंदर जा सकते हैं। बहुत बेस्ट से बेस्ट फील्ड है, और दुनिया के वो टॉप लीडर्स जो है वो सब यहीं से हैं। और जितने भी लोग हैं जो कम टाइम के अंदर अपनी स्किल से दुनिया में बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, वो भी आर्ट्स से हैं। ओके, अगले पॉइंट पे जाते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, ये सेम है। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक गाना सुनेंगे, आसान है। ओके, वन ऑफ द सॉन्ग्स, हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। सो लास्ट ये गाना सुनने के बाद हम लोग 1-to-1 सेशन रखेंगे, जहां पे अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, कोई पर्टिकुलरली आपको कोई पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं। और किसी भी स्टूडेंट्स को 1-to-1 भी मुझे मिलना है तो वो डेफिनेटली मेरा कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमें रॉन्ग फील्ड का पार्ट नहीं बनना है। ओके, चलिए हम लोग एक गाना सुनते हैं, क्योंकि हर एक चीज में अगर आप चाहे आर्ट्स करो, कॉमर्स करो, साइंस करो, दुनिया में किसी भी फील्ड में जाओ, बीवॉक करो या जो भी करो, लेकिन अगर ये गाना अपने अंदर आपने समा लिया और इस गाने को आपने समझ लिया ना, तो सब कुछ आसान है। क्योंकि गाने का शुरुआत भी यही है कि आसान है। चलिए सुनते हैं। इस गाने को आपको गाना भी है। आवाज कर रहा है। इसको साथ में गाना है। अगर आप ये गाना गा सकते हैं, अगर छोटे बच्चे बन सकते हैं, तो लाइफ में सबसे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। इस दुनिया में जिसने भी टॉप पे पहुंचे हैं, जिसने दुनिया में सब कुछ हासिल किया है, वो बड़े बन के हासिल किया है कि छोटे बच्चे बन के हासिल किया है? छोटे बच्चे बन के। अगर हम छोटे बच्चे जैसे सोच सकते हैं, उनके जैसे सवाल कर सकते हैं, उनके जैसे क्रिएटिव बन सकते हैं, तभी हम दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम बड़े बन जाएंगे, समझदार बन जाएंगे, सवाल करने के लिए हम शर्म करेंगे और सवाल नहीं कर पाएंगे और बड़े बन जाएंगे, तो डेफिनेटली हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर दुनिया में कुछ भी हासिल करना है तो छोटे बच्चे बनना पड़ेगा। तो आप सबको ये गाना गाना है, मनोमन गाइए, और गाएंगे तो इसकी इफेक्ट होगी और सच में ये चीज आपके लिए आसान बन जाएगी। दो पावरफुल शब्द है दुनिया के, आसान है। अगर मैं मान लूं कि ये आसान है तो वो आसान है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पिछले साल जो गुजरात में सीबीएसई की जो स्टूडेंट आई, जो फर्स्ट आई, उसने एग्जाम से 1 महीने पहले अपनी मार्कशीट खुद बनाई। एक पेपर लिया, उसने सारे सब्जेक्ट लिखे, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे कि मुझे 700 में से 690 मार्क्स आएंगे, मुझे 99.99% आएंगे। और वो मार्कशीट बना करके भगवान के पास रख दी और भगवान को बोला, मुझे मुफ्त में यानी फ्री में ये नहीं चाहिए कि मुझे 99.99 मार्क्स आए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगी और मुझे 99.99 मार्क्स आने चाहिए, और ये करना मेरे लिए आसान है। और आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले साल उस लड़की का रिजल्ट जो था, उसने खुद मार्कशीट 1 महीने पहले बनाई थी कि मुझे 700 में से 690 आने चाहिए। उस लड़की को
जब मार्क्स आया, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो उसको उस एग्जाम के अंदर 686 मार्क्स मिले। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या मानते हैं। अगर हम मानते हैं कि ये मेरे लिए आसान है तो वो आसान है। अगर मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए मुश्किल है तो वो आसान होने के बावजूद मेरे लिए क्या है, मुश्किल है। अगर सिर्फ सोचने की बात है, अगर इस दुनिया का कोई भी एक इंसान वो कर सकता है तो सवाल ये होना चाहिए मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर वो इंसान जिसके पास एक नाक है, दो आंख है और वही दो कान है, दिखता भी मेरे जैसा है, अगर वो इंसान कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके लिए वो चीज आसान है तो मेरे लिए क्यों नहीं। अगर ये चीज अगर मैंने समझ ली और मान ली और अपने रिजल्ट आने से पहले ही मैंने मेरा रिजल्ट बना के रख दिया कि इतने तो मुझे आएंगे, हर हाल में आएंगे, और ये मिथ आपने बना दिया ना और ये ठान लिया ना, तो आपको उतने मार्क्स आएंगे आएंगे आएंगे। चाहे आप इसको कोई भी शक्ति मान लो, इसको श्रद्धा मान लो या जो भी मान लो, वो उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। कुछ लोग इसको मैनिफेस्ट बोलते हैं, कुछ लोग श्रद्धा बोलते हैं, कुछ लोग उसको पॉजिटिवनेस बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन एक चीज हमेशा काम करती है कि अगर हम मान ले कि मुझे ये करना है और ये करना मेरे लिए आसान है तो वो आसान है और रहेगा। ओके, दैट्स व्हाई ये गाना बहुत जरूरी है। हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन जब तक हमारे अंदर वो पावर नहीं आएगा ना कि ये सब कुछ आसान है और मैं कर सकता हूँ, तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये सॉन्ग्स बहुत जरूरी है। इस सॉन्ग को हम लोग सुनते हैं। आसान है, आसान है, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा पता है, कल फिर से चलना है। जिंदगी बहुत ही छोटी, कल तक मैं न रुकूंगा, जो भी मुझको करना है, हाँ मैं करूंगा। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, लास्ट 5 मिनट्स, अगर आप में से किसी को भी कोई प्रश्न हो, पूछना हो, तो लास्ट 2-3 मिनट में आपको दूंगा। अगर इफ एनीवन पूछना चाहता है तो आई कैन गिव यू 1 or 2 minutes, 3 minutes, whatever. Anyone have a questions? ओके, ठीक है। देन 1 to 1 हम लोग लास्ट में कभी आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन टू लिसनिंग मी। थैंक यू।